ख्वाबوں کا ملک، محبت کی سرزمین اور شاندار ثقافت کا گہوارہ۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فرانس کی۔ ہیلو دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے فرانس کی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک نہ صرف اپنے تاریخی مقامات بلکہ حیرت انگیز حقائق کی دنیا بھی سموئے ہوئے ہے۔ فرانس کی تاریخ قدیم زمانے سے لے کر جدید دور تک بہت وسیع اور متنوع ہے۔ یہ مختلف تہذیبوں، انقلابات اور عالمی جنگوں سے گزری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرانس کے جدید اور قدیم دور کی، اور فرانس میں موجود دنیا کے 7ویں عجوبے ایفل ٹاور کی بھی خوب چرچا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ دوستوں، موجودہ فرانس کا علاقہ کیلٹس کے قبائل کے زیر اثر تھا، جنہیں گالز کہا جاتا تھا۔ رومی سلطنت نے پہلی صدی قبل مسیح میں جولیس سیزر کی قیادت میں گالز کو فتح کر لیا اور اسے رومی صوبے گال میں تبدیل کر دیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں جرمنک قبائل، خاص طور پر فرینک نے روم کی زوال پذیری کے بعد اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 486 عیسوی میں کلوویس اول نے پہلی بار فرینک بادشاہت قائم کی۔ 8ویں صدی میں شارلیمان نے ایک عظیم سلطنت قائم کی جو بعد میں رومی مقدس سلطنت کی بنیاد بنی۔ 987 عیسوی میں کیپیٹین ڈائنیسٹی اقتدار میں آیا اور فرانس میں بادشاہت مضبوط ہوئی۔ 1337 سے 1453 کے دوران 100 سالہ جنگ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ہوئی، جس میں جوان آف آرک نے اہم کردار ادا کیا۔ 15ویں صدی سے 18ویں صدی میں فرانس یورپ کے ثقافتی اور سائنسی ترقی میں ایک اہم ملک بن گیا۔ لوئی 14ویں نے 1643 سے 1715 کے دوران مطلق العنان بادشاہت کو مضبوط کیا اور ورسائے کا محل تعمیر کرایا۔ 1789 میں فرانسیسی انقلاب برپا ہوا، جس میں عوام نے بادشاہت کے خلاف بغاوت کی اور لوئی 16ویں کو 1793 میں قتل کر دیا۔ انقلاب کے دوران جمہوریت، آزادی، مساوات اور بھائی چارے جیسے تصورات کو فروغ ملا۔ 1799 میں نیپولین بوناپارٹ نے اقتدار سنبھالا اور 1804 میں خود کو شہنشاہ بنا لیا۔ 1815 میں واٹر لو کی جنگ میں شکست کے بعد نیپولین کو جلا وطن کر دیا گیا۔ 19ویں صدی میں فرانس میں مختلف حکومتیں قائم ہوئیں، جن میں بادشاہت، جمہوریت اور سلطنت شامل تھیں۔ 1848 میں دوسری جمہوریہ قائم ہوئی۔ 1852 میں نیپولین سیوم نے دوسری سلطنت قائم کی۔ 1870 سے 1871 میں فرانکو پرشین جنگ کے بعد تیسری جمہوریہ قائم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں فرانس اتحادیوں کے ساتھ شامل تھا اور شدید نقصان اٹھایا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 کے دوران نازی جرمنی نے فرانس پر قبضہ کر لیا، مگر چارلس ڈی گال کی قیادت میں فرانسیسی مزاحمت کامیاب رہی۔ 1945 کے بعد چوتھی جمہوریہ قائم ہوئی، جو 1958 میں 5ویں جمہوریہ میں تبدیل ہو گئی۔ 1958 میں چارلس ڈی گال نے جدید فرانس کی بنیاد رکھی اور ملک کو اقتصادی اور عسکری طاقت بنایا۔ فرانس یورپی یونین اور نیٹو میں ایک اہم ملک بن گیا۔ 21ویں صدی میں فرانس نے معاشی، سائنسی اور ثقافتی ترقی کے میدان میں اہم مقام حاصل کیا۔ آج فرانس دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہے اور عالمی ثقافت اور ٹیکنالوجی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دوستو، فرانس کی برآمدات میں شامل ایرو اسپیس اور دفاعی مصنوعات، ایئر بس طیارے، جنگی طیارے، ہیلی کاپٹرز، میزائل اور دیگر ساز و سامان، برانڈوں، ملبوسات، خوشبو اور کاسمیٹکس، گھڑیاں اور زیورات، خوراک اور مشروبات، شراب اور شیمپین، پنیر، چاکلیٹ اور پیسٹری، زیتون کا تیل اور دیگر مصنوعات، کیمیکلز اور دوا-سازی، آٹو موبائل، نیوکلیئر ٹیکنالوجی، روبوٹک اور آٹومیشن، برقی آلات، نیوکلیئر ری ایکٹر اور انرجی ٹیکنالوجی، آئل ریفائنری کی مصنوعات، زرعی مشینری، حیاتیاتی کیمیکل اور کھاد۔ فرانس کی بڑی برآمدی مارکیٹوں میں جرمنی، امریکہ، چین، برطانیہ، اٹلی، اسپین اور بیلجیم شامل ہیں۔ دوستو، فرانس ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے جو اپنی ثقافت، کھانوں، فن تعمیر اور فیشن کے لیے مشہور ہے۔ فرانس دنیا کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔
जहां हर साल तकरीबन 90 मिलियन से ज़ायद सयाह आते हैं। फ्रांस में मौजूद दुनिया के 7 अजूबों में से एक एफल टावर को हर 7 साल बाद दोबारा पेंट किया जाता है और इस पर तकरीबन 60 टन पेंट इस्तेमाल होती है। एफल टावर पेरिस, फ्रांस का एक मशहूर यादगार और दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले मकामात में से एक है। एफल टावर को 1889 में पेरिस के आलमी नुमाइश के लिए बनाया गया था, जो फ्रांसीसी इनकलाब के 100 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की गई थी। इसका डिज़ाइन गुस्ताव एफल टावर की कंपनी ने तैयार किया और इसी वजह से इस टावर का नाम एफल टावर रखा गया। एफल टावर की तामीर 28 मार्च 1887 को शुरू हुई और 31 मार्च 1889 को मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में तकरीबन 2 साल 2 माह और 5 दिन लगे। इसकी ऊंचाई 330 मीटर है और ये उस वक्त की सबसे ऊंची इमारत थी। इसकी तामीर में 18,036 लोहे के टुकड़े और तकरीबन 10,000 टन लोहा इस्तेमाल हुआ। एफल टावर की तामीर के वक्त कई फ्रांसीसी मुसन्निफीन, फ़नकारों और मेमारों ने इसे बदसूरत ढांचा कहा और इसकी शदीद मुखालफत की। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ ये पेरिस की मशहूर अलामत बन गया। 20वीं सदी के अवाइल से इसे रेडियो और बाद में टीवी सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल किया गया। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले यादगारों में से एक है, जहां सालाना लाखों सयाह आते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब नाज़ी जर्मन फ़ौज ने पेरिस पर कब्ज़ा किया तो फ्रांसीसी मुज़ाहमतकारों ने इसके लिफ्ट की तारें काट दीं ताकि जर्मन फ़ौज इसे इस्तेमाल न कर सके। एफल टावर आज पेरिस और फ्रांस की शनाख्त बन चुका है। रात को इस पर खूबसूरत रोशनियों का एहतमाम किया जाता है, जो सयाहों के लिए एक यादगार नज़ारा पेश करता है। ये न सिर्फ एक तारीख़ी और सकाफ़ती अलामत है, बल्कि इंजीनियरिंग का शानदार कारनामा भी है। फ्रांस ने अदब के शोबे में किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा नोबल इनाम याफ्ता मुसन्निफ़ीन पैदा किए हैं। दुनिया की पहली मोशन पिक्चर फिल्म 1895 में फ्रांस के लूमियर ब्रदर्स ने बनाई थी। फ्रांस में 40,000 से ज़्यादा किले और महलात मौजूद हैं, जो इसे यूरोप के सबसे तारीख़ी ममालिक में शुमार करते हैं। पेरिस में मौजूद लूवर म्यूज़ियम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला म्यूज़ियम है, जहां मशहूर पेंटिंग मोना लीज़ा भी रखी गई है। फ़्रेंच ज़ुबान न सिर्फ फ्रांस में बल्कि 29 दीगर ममालिक में भी बोली जाती है और फ़्रेंच ज़ुबान अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़ुबानों में भी शामिल है। 1659 में फ़्रांस ने दुनिया की पहली फ़ैशन मैगज़ीन शाया की, जो फ़्रांस के फ़ैशन के मैदान में असर और रसूख को ज़ाहिर करती है। ये सब हक़ाइक़ फ़्रांस को एक मुनफ़रिद और दिलकश मुल्क बनाते हैं, जहाँ तारीख़, सकाफ़त और जदीदियत का शानदार इम्तिज़ाज नज़र आता है। दोस्तों, फ़्रांस का परचम 3 उमूदी रंगों पर मुश्तमिल है: नीला, सब्ज़ और सुर्ख। ये परचम ट्राई कलर भी कहलाता है और 1794 में फ़्रांसीसी इनकलाब के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया गया था। ये परचम आज़ादी, मुसावात और भाईचारे की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, फ़्रांस का कौमी दिन बास्टिल डे कहलाता है और हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन 1789 के फ़्रांसीसी इनकलाब के दौरान बास्टिल किले पर अवाम के हमले की याद में मनाया जाता है, जो बादशाह के ख़िलाफ़ अवामी बगावत और जमहूरियत के क़याम की अलामत बन गया। इस मौके पर फ्रांस भर में मुख्तलिफ़ तकारीब मुनाकिद की जाती हैं, जिनमें पेरिस में शानदार फ़ौजी परेड, आतिशबाजी, कॉन्सर्ट्स और दीगर सकाफ़ती सरगर्मियाँ शामिल हैं। ख़ास तौर पर एफल टावर के करीब आतिशबाजी का मुज़ाहरा दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, फ्रांस के कौमी शायर के तौर पर विक्टर ह्यूगो को बड़े पैमाने पर तस्लीम किया जाता है। वो 19वीं सदी के मशहूर मुसन्निफ़, शायर और ड्रामा निगार थे, जिनकी शायरी और नस्र दोनों ने फ़्रांसीसी अदब पर गहरा असर डाला। उनकी मशहूर तसानीफ़ लिस मिज़रेबल और नोटर डी पेरिस शामिल हैं। वो रोमानवियत के बड़े नुमाइंदे शुमार किए जाते हैं और उनकी शायरी फ़्रांस की कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा समझी जाती है। दोस्तों, फ़्रांस में खेलों को कौमी सकाफ़त में एक अहम मकाम हासिल है। यहाँ मुख्तलिफ़ खेल मकबूल हैं। फ़्रांस में फ़ुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है। फ़्रांस कौमी टीम ने 1998 और 2018 में फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा रग्बी यूनियन ख़ास तौर पर जनूबी फ़्रांस में बहुत मकबूल है। फ़्रांसीसी कौमी टीम कई बार रग्बी वर्ल्ड कप फाइनल्स में पहुंची है। इनके अलावा साइकिलिंग, टेनिस,
बास्केटबॉल, हैंडबॉल, गोल्फ, मोटर स्पोर्ट्स, जूडो, स्कीइंग, फेंसिंग वगैरह भी काफ़ी मकबूल खेल हैं। फ्रांस में खेलों के हवाले से बेहतरीन सहूलियात, टूर्नामेंट्स और एक मजबूत खेलों की सकाफत मौजूद है जो दुनिया भर में इसकी पहचान बनाती है। दोस्तों, फ्रांस को दुनिया में फ़ैशन का दारुल-हुकूमत कहा जाता है, जहां पेरिस फ़ैशन के जदीद रुझानात का मरकज़ है। फ्रांसीसी फ़ैशन अपनी सादगी, नफासत और आला मयार की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेरिस में हर साल मुनक्कद होने वाले पेरिस फ़ैशन वीक जैसे बड़े इवेंट्स आलमी फ़ैशन इंडस्ट्री पर गहरा असर डालते हैं। फ्रांसीसी अदब में रोमानवी दास्तानें एक नुमायाँ मकाम रखती हैं। फ़्रांस की रोमानवी दास्तान आमतौर पर मोहब्बत, जज्बात, कुर्बानी और इंसानी ताल्लुकात के गिर्द घूमती हैं। इनमें न सिर्फ मोहब्बत की गहराई को बयान किया जाता है, बल्कि समाजी और सकाफ़ती पस मंज़र को भी खूबसूरती से पेश किया जाता है। दोस्तों, फ़्रांस का दारुल-हुकूमत पेरिस है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर भी है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत और तारीख़ी शहरों में शुमार किया जाता है और इसे रोशनियों का शहर, सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। पेरिस सकाफ़त, फ़न, फ़ैशन, मईशत और सियाहत का एक आलमी मरकज़ है। ये सीन रिवर यानी दरिया सीन के किनारे वाक़ है और यहाँ मशहूर एफल टावर, लूवर म्यूज़ियम, नोट्री डेम कैथीड्रल और शांज़ेलिज़े जैसे मशहूर मकामात मौजूद हैं। पेरिस अपने फ़न, अदब और गैस्ट्रोनॉमी यानी खानों की वजह से भी मशहूर है और हर साल लाखों सयाह इसे देखने आते हैं। इसके अलावा फ़्रांस के बड़े शहरों में मार्सिल, लियोन, टोलोज़, नीस, नानेत, स्ट्रासबर्ग, बोर्दो, लील और रेन काबिल ज़िक्र हैं। ये शहर न सिर्फ आबादी के लिहाज से बड़े हैं, बल्कि सकाफ़ती, तारीख़ी और इक़्तिसादी अहमियत भी रखते हैं। दोस्तों, ये थी फ़्रांस के बारे में चंद मालूमात। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।